Adab, you're watching Awaz the Voice and I'm Yasmin Khan, and today Awaz the Voice traveled to Kupwara and we have been joined by a very prominent political figure, Nasir Aslam Wani. Thank you so much, sir, for sparing your time for this interview. So I would like to begin with that you, in NC's rule, you have served as MOS for tourism, planning and a lot of other assignments. But in this interview, we basically do the profiling of the political person because we just want to tell the people like why exactly they should put in their faith in the candidate. So starting with your initial years, how was it like when you started your career with the youth wing of NC? How was it like to perform in the political scenario, especially during the insurgency? See, you're very right. It was not easy. Those days it was not easy joining politics, and also for us, we were all new, and even our families were quite worried that we are working in a political setup. That time, going around, talking to people, even conducting a proper jalsa was so difficult. But it was a great learning experience. Whatever we are able to do or handle now is only because of those formative years where we were together. Umar Saab became our president, Farooq Saab was the chief minister, and we were other colleagues were with us. We used to go to all nooks and corners of the state, and that was the time when we got to interact with different kinds of people. We got to see different terrains. We got to understand the nuances of politics. We also got to understand the ground realities and the requirements of people, their expectations. All this, those were really learning years. Yeah. So talking about Umar Abdullah, he is your colleague and also your good friend. So he was somebody who had asked you to contest from Amira Kadal constituency. Although like your grandfather, he has been into politics from this very place, and you had a very strong base here in Kupwara. Why did you contest there? Even though like there were people who were questioning like why are you contesting there? And तब मजाक में उमर साहब ने कह दिया था ये तो LD हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं तो he can contest from here. So now that you are back to base, like what's the reason? See, that time we had other colleagues also in the fray. So पार्टी का उस वक्त यही था कि नहीं, अगर यहाँ एक कुलीग को उठाएंगे तो दूसरे को बेकार नहीं कर सकते, तो मेरे को उठाते तो दूसरे को नहीं कर सकते, क्योंकि जगह नहीं थी। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज 5 ही थी यहाँ, बट गॉड वाज काइंड, मुझे यहाँ से जब श्रीनगर लिया गया तो मैंने वहाँ इलेक्शन लड़के जीता, और उसी वजह से मैं उस वक्त गवर्नमेंट में भी आ सका, मिनिस्टर बन सका। आज जब ये डिलिमिटेशन हुई और एक सीट, that's the only silver lining I see in that entire delimitation, that one seat was created in Kupwara district. Yes. And I got a chance to come back to my roots, and this has been my passion to serve people of Kupwara more than anything else. Yeah, I've heard that your rallies are quite full of energy. So today we are going to experience your rally firsthand. So let's just tour around and see like what all is. Most welcome. Come. Sir, Jamaat has been contesting elections before also. तो इवन उन्होंने जो पहले इलेक्शन लड़ा था तब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया था। अब चूंकि एनसी का अलायंस और कांग्रेस का अलायंस बन चुका है, तो ऐसे में आई वुड लाइक टू नो कि अभी जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बोला गया था हलाल हराम वाला जो डिबेट है काफी ज्यादा एग्जैजरेट हुआ था, तो लाइक व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? बिकॉज उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जमात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ब्लडशेड इन कश्मीर, जो आज तक यहाँ पे हालात खराब हुए। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जमात कोई पहली दफा इलेक्शन नहीं लड़ रही है, और जमात ने हकीकती तौर पे एक टाइम पे कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। आज अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का सोचा है तो अच्छी बात है, हम लोग उसका खैर मकदम करते हैं, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जमहूरियत में, जिसको जो अगर इलेक्शन में आए तो अच्छी बात है। लेकिन ये सवालात आपको जरूर पूछने चाहिए कि जब 90 की दिहाई में वो इलेक्शन के खिलाफ बात करते थे और इलेक्शन को जायज नहीं मानते थे, और आज इलेक्शन में वो आना चाहते हैं और इलेक्शन का जो
प्रोसेस है उसमें उनको यकीन है। तो ये हमारा स्टैंड उससे विंडिकेट होता है कि हाँ जी, इलेक्शन का प्रोसेस जमहूरियत में और हमारे मुल्क में बिल्कुल सही है। और उस प्रोसेस को जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है कि क्या वो तब ठीक थे जब वो उसके खिलाफ बात कर रहे थे, या अब ठीक हैं जब वो उसके हक में बात कर रहे हैं। ये these questions are basically you should ask them। हम तो उसमें बिल्कुल खुश हैं, वो आए इलेक्शन लड़े, अच्छी बात है। अभी बीजेपी ने जिस तरह से बोला कि एक्स या फॉर्मर मिलिटेंट्स कह सकते हैं, उनका सपोर्ट पीडीपी को है और एनसी को भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी सोच के वो खुद जवाब दें। यहाँ हमको उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लगभग 3000 के करीब हमारे साथी कुलीग्स शहीद हुए हैं, जानों की उन्होंने अपनी जो है कुर्बानी दी है यहाँ इस झंडे को खड़ा रखने के लिए। और ये मैं ये कहने से नहीं होगा, ये एक बाज़ाब्ता हकीकत है। और आज हमसे अगर देशभक्त होने का और नेशनलिस्ट होने की सर्टिफिकेट हमको बीजेपी से लेनी पड़ी तो ये बड़े अजीब सी बात लगती है। और ये बड़ा एक जो है हमको भी इससे दुख होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अब वो लोग हम पे सवाल उठाते हैं, और जो तब थे ही नहीं, वो इस पॉलिटिकल जो है माहौल में यहाँ कहीं मौजूद ही नहीं थे तब, जब यहाँ मुश्किल दौर था। जैसे आपने शुरू में भी सवाल पूछा, जब यहाँ सियासत करना, अपने मुल्क का झंडा उठाना, अपने मुल्क की बात करना, अपने मुल्क के आइन की बात करना, तो जुर्म के बारे में लगभग माना जाता था। उस वक्त ये लोग थे नहीं। आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं तो उसमें क्या कहें। सही सर, कांग्रेस की अगर हम बात करें, देखिए अगर एक तरह से हम एनसी देखें तो एनसी एक छोटी पार्टी है बिकॉज रीजनल पार्टी है, तो वी हैव जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब कांग्रेस जो है पूरे कंट्री में फैला हुआ है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि जो आपने अलायंस उनके साथ किया एंड दे विल सपोर्ट यू इन द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल, बिकॉज अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो कांग्रेस खराब नहीं करेगी ना, फॉर द सेक ऑफ restoration of article 370 and also the point that they have not talked about it in any of their press briefings। आपने अगर देखा होगा हमारा मंशूर जब इशू हुआ, हमने जब अपना मंशूर लोगों के पास लाया तो उसकी बड़ी सराहना हुई और उसमें ये सब चीजें दर्ज हैं। और वो मंशूर जब हमने इशू किया उसके बाद अलायंस की बातचीत हुई। अगर उनको उसमें किसी भी जगह पे एतराज होता तो आज हम अलायंस में बैठे नहीं होते। सर अभी जब पीएजीडी बना था, इवन उसके बाद जो डीडीसी वाले इलेक्शन भी हो गए थे, उसमें पीडीपी और एनसी ने साथ में इलेक्शन लड़े काफी अच्छे तरीके से, जिनको जो सीटें मिली तो, बट इट वाज क्वाइट ओके विद एवरीबडी। बट इस पॉइंट पे जब असेंबली इलेक्शन हुआ और आपने कांग्रेस के साथ टाई अप किया, क्या पीडीपी को भी एनसी ने अप्रोच किया था अलायंस के लिए? नहीं, ये तो जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा तभी क्लियर हो गया था, क्योंकि बात ये थी कि जब हमको इंडिया अलायंस ने यहाँ 3 सीटें लड़ने के लिए, जो हमारी हम सिटिंग एमपी थे वो सीटें हमने लड़ी और जम्मू में कांग्रेस ने लड़ा, उस वक्त पीडीपी ने दे चोज टू फाइट अगेंस्ट द अलायंस। और जब उस वक्त वो अलायंस के साथ नहीं चले तो आज तो चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ओके, तो कुपवारा के लोगों के लिए व्हाट्स इन योर बकेट लिस्ट अपार्ट फ्रॉम बिजली, सड़क एंड पानी? See, basically Kupwara has to come up as a developed district। अभी भी आप देख रहे थे इस डिस्ट्रिक्ट को अभी 4 लेन के साथ नहीं जोड़ा गया है। यहाँ हेल्थ केयर की बड़ी दिक्कत है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है हमने सोचा है कि हम उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक उसको पहुँचा पाए। रोड नेटवर्क की यहाँ बड़ी दिक्कत है। हमें यहाँ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास यहाँ एजुकेशन का पूरा निज़ाम नहीं है, क्योंकि जो नॉर्थ कैंपस यहाँ खुला है उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ बच्चों की स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ टूरिज्म के हवाले से अभी उतना कोई फ्लो नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद अभी यहाँ टूरिज्म का स्प्रेड नहीं है, लोग आते नहीं है उस तादाद में जिस तादाद में आने चाहिए। कुछ जगह तो यहाँ गुलमर्ग और पहलगाम से भी खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि यहाँ की टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शनल बने और यहाँ टूरिज्म का जो है फ्लो हो और उसका फायदा यहाँ के लोग ले सकें। यहाँ के नौजवान उसमें अपना
रोजगार कमा सके। जी, तो सर समहाउ डू यू बिलीव कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो बॉर्डर टूरिज्म है उस पे काफी वर्क किया गया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सो वुड यू लाइक टू क्रेडिट देम फॉर दिस वर्क? बिकॉज टीटवाल की अगर हम बात करें, करना की बात करें, टूरिज्म के लिए खोल दिया गया, इनिशियली बड़ा मुश्किल होता था। वो कहाँ बंद था, वो कहाँ बंद था, बट टूरिस्ट लेकिन आते नहीं थे तब। क्योंकि आप देखिए, आप आज के माहौल की बात कर रहे हैं, टूरिज्म का जो यहाँ जो फ्लो रहा, अगर आप देखें, हमारी सरकार में भी 2012 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आए। हम लोगों ने, मैं भी टूरिज्म का वहाँ डिपार्टमेंट देख रहा था, तो हमने जगह जगह जाके टूरिज्म प्रमोशन की और लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। उससे यहाँ लोग आना शुरू हो गए। और यहाँ की जो खूबसूरती और यहाँ का जो अपना एक यूएसपी है, यहाँ टूरिस्ट वैसे ही आएंगे ओनली इफ यू गिव देम प्रॉपर फैसिलिटी फॉर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ जहाँ वो क्रिएट हो जाता है वहाँ टूरिस्ट जरूर आएगा। इसमें इनको इतनी सराहना देना, तो वो तो अपनी पीठ हर बात पे थपथपाते हैं, तो उसमें मैं उनको क्या कितना क्रेडिट दूं, वो तो खुद ही अपना क्रेडिट लेते हैं। हाँ, तो सर अब लोग जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस यही रहेगा कि आप हम पे एतमाद कीजिए, हमें वोट दीजिए, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे और आपके वोट का हक पूरा अदा करेंगे। इस कुपवारा जिले को, खासकर कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी को हम मिलकर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।